कैसे हो फ्रेंड्स। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 की जर्नी हमने शुरू कर दी है। टोटल हमने 5 पार्ट्स देखे। थोड़ा मैं पांचों 5 पार्ट्स को बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, यू नो दैट वेरी वेल, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v। याद करो फॉर्मूला, Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। Then in second part we discuss magnetic force acting on a current carrying wire of length L placed in magnetic field, and it is, you know, that IL cross B, and we discuss very important numericals or JEE related questions associated with this formula. After that in part 3 we discuss, you know, that motion of particle. In part 4 we discuss very important shortcuts and important numericals. And in part 5th, you know that very well, in part 5th, Biot-Savart's law and its application. In part 5, by using Biot-Savart's law, we also derived formula for magnetic field due to current carrying circular ring or loop. So friends, today's lecture, I can say one of the most timely lecture of this chapter. So without wasting time, we start. Moving charge and magnetism part 6. You can say written here JEE NEET Dhoom. This is special for JEE NEET. In this entire lecture, we will consider only some conceptual points, shortcuts, all shortcuts associated with this word. That means for current carrying circular loop or ring, and also add some more important points. तो आज का लेक्चर, that means इस चैप्टर का अगर JEE NEET पे जिसको मास्टरी लेनी है तो इसका सेंट्रल पॉइंट है. So be alert. So friends, in last lecture we discussed this topic by using Biot-Savart's law for a current carrying circular loop or ring. This is, you can see that, a current carrying loop and carrying current I, you can see that. What is the radius of this loop? Capital R. And we would like to find intensity of magnetic field at this point P, which is situated distance x from the center. ये लूप और रिंग के सेंटर से x जितनी दूरी पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो इट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P because of this current carrying loop. So it is mu naught n I r square upon 2 into x square plus r square power 3 by 2, where n, you can see there is arrow, this n representing number of turns associated with this loop. And then friend, you know that लास्ट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर 5th पार्ट में कि ये है सबसे लास्ट में, मगर यही धूम मचाने वाला है. तो ये है हीरो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग. हियर आई वुड लाइक टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो to obtain magnetic field x should be 0. So if x 0, then it is mu naught n I upon 2 into radius. ये फॉर्मूला मोस्ट IMP, और इसलिए मैंने इधर बाकी रखा है धूम, क्योंकि ये धूम मचाने वाला है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ विल मूव, वी कैन से दैट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब मैं यहाँ पे एक एक करके शॉर्टकट फेंकूंगा. तो ये जो जानदार शानदार शॉर्टकट में फेंकने जा रहा हूँ, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर टू मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन. कोई बोले क्या कह रहे हो, ये बताओ. तो देखो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप? इट कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. एंड सपोज आई वुड लाइक टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. तो ये अपना ये फॉर्मूला है. तो अब ये दोनों का रेशियो, सो मैं डायरेक्ट लिखूंगा विदाउट एनी, वी कैन से दैट सिंप्लीफिकेशन. दिस इज, you can see that one of the most IMP equation of this discussion, very very IMP, धूम मचाने वाला है. This is the ratio of magnetic field at the center to magnetic field at any distance x from the center, that means on axial line. 1 plus x square by r square power 3 by 2. X representing distance from the center and r representing radius of the circular loop. Marvelous, most IMP. So be alert about it. Now we'll write one more. तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं. ये इंट्रोडक्शन पॉइंट अपने पास था, नो डाउट, यू नो दैट वेरी वेल. So now friends, we move in next way, or next point you can see.
सब कुछ जोरदार है, इसलिए जरा देखना आज पॉइंट टू पॉइंट सभी जितने पॉइंट्स है वो सब 2 to 3 टाइम्स लिख के लर्न करना है। नाउ टू सर्क्यूलर loops, or I can say rings, which are perpendicular to each other. Then what happen? You can see this is loop number 1, black color, and this is you can see that loop number 2, red color. अब दोस्तों इधर आगे बढ़े उससे पहले अपन लोग करंट कैरिंग लूप का एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो डायरेक्शन रिलेटेड। So you can see this is the radius r of the loop, and I would like to find intensity of magnetic field at point P which is situated distance x। तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो अपने को पता है, b म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 into x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। मगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया, मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? So direction, whenever you are dealing with circular loop, then this is the method, thumbs up, you can see that। मगर अब मैं इसको खोलता हूँ, you can see that like in this way, this is you can see this curl of finger simply represent direction of current। suppose ये जो loop है उसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, you can see like in this way, यानी कि ऐसे, you can see, ready? So you have to think about like this one। So this curl of finger simply represent direction, you can see that curl of finger। So this is the direction of current, and check the direction of thumb already in upward direction। So what is the direction of magnetic field? It is already in upward direction। So you can see like in this way, this is the direction of current and thumb represent direction of magnetic field। So what is the magnetic field at this point P? If current flows like in this way, obviously in upward direction, this is magnetic field। But if you think about the opposite process, that means current flows, we can say that not in this direction but opposite, यानी अपन लोग ने करंट लिया ऐसे, अब लेते ऐसे, तो काफी लोग ऐसा यूं कर देते हैं, अरे एक पकड़ के रखना है। you can see that you have to think about right hand thumb rule। okay, so this is the direction of current, then thumb in upward direction। now you can see that this is the direction of current, so check the direction of thumb in downward direction। so if you reverse, if you make direction of current opposite, obviously magnetic field also in opposite direction। so friends, here you can see that two circular loops are already shown like this one। so first of all, this is the center of first loop, you can see the black color। तो ये black color का loop ऐसे रखा, देखो ऐसे, you can see that। so what is the direction of, if current flows like in this way, this is the direction of current। let the current passing through first loop is I1। ये जो black color का loop है उसमें current ऐसे flow हो रहा है। so what is the direction of magnetic field? it is already in upward direction, you can see that, क्योंकि current ऐसे flow हो रहा है, you can see that, then thumb in upward direction। so at the center of this circular loop, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ ताकि काफी लोगों को दिक्कत ना आए। ready? so what is the direction of magnetic field? obviously this is the direction of magnetic field, it is B1। what do you mean by B1? B1 is the magnetic field at the center due to this first current carrying loop I1। अब दूसरा मैं लूप रखता हूँ ऐसे, देखो this is red color, and current passing through this loop it is I2, this is second loop I2, you can see it। अब इसमें ये लूप ऐसे रखा है ऐसे, क्योंकि both are perpendicular, तो एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो जैसे कह सकते हैं, देखो ये पहला लूप ऐसे था, दूसरा लूप इसको परपेंडिकुलर ऐसे रखा है। ओके, so now what happened here? Loop is situated like somewhere here, like in this way, और current flowing like in this way, देखो ऐसे current। तो अपन लोग तो जानते हैं ऐसा, इसको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में करंट ऐसे फ्लो हो रहा, करंट जिसे कह सकते हैं कि ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अपन लोग देखें करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, यानी करंट बाहर आ रहा है इसमें से। ये लूप कैसे होगी? ऐसे आपके सामने देखो, ये लूप ऐसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बाकी ऐसे देखा जाए ऐसे। अब इसमें से ऐसे करंट फ्लो होगा, यानी कि मैं अब ऐसे कर दूं तो अपन लोग ऐसे देखें, यू कैन सी दैट लाइक इन दिस, सो थंब इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सेकंड लूप। दिस इज योर B2, रेड कलर, you can see that. Now what is the radius? Both are identical loops, don't worry, both are identicals. Identicals, that means here the radii for both loops are equal, don't worry. So what is the resultant magnetic field at the center? ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक JEE नीट चल रहा है, डोंट फॉरगेट।
सो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ए डायरेक्शन में होगा. यू कैन सी दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इट इज गिवन बाय इक्वेशन b1 square plus b2 square. You know that very well. Vector both are perpendicular, so we can write. अब इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन यानी फॉर्मूले और फेंकते हैं. What is the formula of magnetic field due to this current carrying loop और वो भी सेंटर पे. तो अपन लोग इसको ऐसे आगे बढ़ाए b1 square. It is you can see that मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ. There is a mistake क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पहले मैं ऐसा लिखूंगा b1 plus b2 और अब इसका मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा है. डोंट वरी, डायरेक्शन को यहाँ तक रख देते हैं. सो यू कैन सी दिस इज योर आंसर. अब b1 का मतलब क्या होगा? b1 दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस ब्लैक कलर लूप. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप? इट इज म्यू नॉट I1 upon 2 pi into radius. सो रेडियस पोलैरिटी आ रहा देखो अभी मोस्ट आईएम पे. इसी तरह जिसे कह सकते हैं कि मगर इधर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो प्लस. Now B2 is the magnetic field because of this current carrying loop 2. That means red color. तो अपन लोग इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड I2 2 pi r the whole square. रेड कलर के लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा था कि पता चले. अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? सो यू नो दैट वेरी वेल. म्यू नॉट 2 pi r कॉमन और उसका स्क्वायर यानी सिंपल इतना जाएगा म्यू नॉट. Sorry, there is no pi, there is a mistake. 2 into radius only. So this is you can see that 2 into r and 2 into r. अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r. कोई बोले सर म्यू नॉट इनटू n था मगर इधर नंबर ऑफ टर्न हमने 1 कंसीडर किया. सो म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू रेडियस. देखो म्यू नॉट 2r ऑलरेडी आउट ऑफ रूट. सो इनसाइड द रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर. दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं जो धूम लिख रहा हूं वो दोनों फॉर्मूले दिमाग में डायरेक्ट रख देने के. सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल इन व्हिच सर्कमस्टेंसेस व्हेनेवर टू लूप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप. इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इक्वेशन म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू रेडियस ऑफ लूप आइडेंटिकल होगा यानी सेम अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर. i1 करंट पासिंग थ्रू first loop, I2 current passing through second loop, most IMP. But in which circumstances whenever two loops are perpendicular to each other. कोई बोले सर वो थोड़ा इंक्लाइन होता तो अपन लोग इंक्लाइन का भी कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं. Just concentration required. If these two loops are situated like in this way, this is first loop, this is second loop, and there is angle theta. Here what is the angle? 90 degree. Theta 90 degree. But now they both are inclined at theta angle, then resultant magnetic field can be obtained by using equation b1 square plus b2 square plus 2b1 b2 cos theta. इसको तो भली भांति जानते हो, you know that. तो ये शॉर्टकट यूज करेंगे. सो फ्रेंड्स वेरी एमपी डिस्कशन. ये भी धूम मचाएगा. याद रखना बी ग्रुप खास है. सब शॉर्टकट्स बहुत काम में आने वाले. ए ग्रुप जेडब्ल्यू ग्रुप से वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फ्रेंड्स विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कदम और आगे बढ़ते हैं. मैंने बोला पहले सब शॉर्टकट सी डिराइव को डिस्कस करेंगे उसके बाद उसकी एप्लीकेशन बराबर. अब ये 2-3 लेक्चर और पार्ट इसी के रिलेटेड रहने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट. अब अपन लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्क्यूलर रिंग. आपको देखो ऐसा कोई सेमी सर्क्यूलर रिंग दिया है. यू कैन सी इट लाइक दिस वन. Ready? We would like to find intensity of magnetic field here. So what is the we can say that magnetic field? Obviously current passing through it. चलो तो think about it. How can you find it? Just check it. थोड़ा concept apply करो. ओके
what is the we can say that answer? So here you know that very well. The magnetic field at the center of semicircular ring, it can be given by equation mu naught I is the current, upon 4r. Instead of 2r, now you can see that it becomes half, so mu naught I upon 4r. अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट, सेमी सर्कुलर रिंग के बाद अपन लोग देखते हैं वी कैन से दैट 1/4 और आई कैन से क्वार्टर रिंग, क्वार्टर, सिर्फ जिसे कह सकते हैं कि इतना पोर्शन कंसीडर करेंगे, सॉरी यू कैन सी ओनली दिस पोर्शन, एंड व्हाट इज द वी कैन से दैट, ये नहीं देखो, ओनली दिस पोर्शन, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, हियर पॉइंट P, then its answer, it is given by equation mu naught I upon 8 into radius. इसका रेडियस अपन लोग लेते हैं कैपिटल R, R is the radius, here this is the radius again R, so mu naught I upon 8R, so 1/4 ring, then mu naught I upon 8R. Suppose sometimes 3/4, that means 3/4, then what happen, concentration required, ring start its journey from here and up to here, this is you can see that 3/4 radius R. What is the intensity of magnetic field at this point P? So it is given by equation, तो एक का इतना है तो 3 टाइम्स कर देना क्या, सिंपली 3 mu naught I upon 8R. ये सभी मास्टरपीसेस है, मोस्ट IMP, सेमी सर्कुलर रिंग mu naught I upon 4R, 1/4 और क्वार्टर रिंग mu naught I upon 8R, 3/4 और 3/4, then 3 mu naught I upon 8R. जस्ट चेक इट, एनालाइज, ये दिमाग में चाहिए मुझे. रेडी? ओके फ्रेंड्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. अब अपन लोग एक कदम आगे, ये सभी फॉर्मूले दिमाग में छप जाने चाहिए, और ये लंबी दूरी के साथ ही है, इसलिए दिमाग में लंबी दूरी तक रखने के है, अगले साल अप्लाई करने के है, दैट्स व्हाई. अब अपन लोग अप्लाई करेंगे, जिसे कह सकते हैं कि वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ यू कैन सी दैट द सुप्रीम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying arc, so just concentration required, this type of arc is already given. ऐसे क्वेश्चन धूम मचाएंगे. ओके, ये पोर्शन अपने को टेंशन में नहीं लेना, ये सिर्फ मैंने इधर सबटेंड करने के लिए दिया. यू कैन सी दैट दिस इज योर टारगेट. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P? बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग आर्क, करंट सिर्फ इसमें से पास हो रहा है. And what is the radius of this portion? It is R. So magnetic field at this point P, because of this current carrying R, it is given by equation mu naught I multiplied by theta. Theta is the angle, and it is always we have to write in radian, upon 4 pi into radius, most IMP. You can see very important formula, ये दिमाग में कर देने का है, रख देने का है, very very IMP. This is the formula of magnetic field at the center of arc. So this arc, you can see the subtensum angle theta. This is your theta. You can see theta is the angle subtended by this arc at this given point. So friends, very important point. Again, you have to analyze it. Okay. So now one more. ये सब shortcut से don't forget. Now we have to think about magnetic field at the center of current carrying polygon. अब देखो ये जोरदार पॉइंट. सो दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू नीट. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग polygon, you can see. So most IMP. So suppose if you think about this type of square, चलो तो ये polygon, then pentagon, triangle, hexagon, you can consider. So what is the formula of magnetic field at the center of this square? तो मैं तो polygon के लिए जनरल लिख रहा हूँ, डोंट वरी, मैंने एक एग्जांपल दिया है. So what is the formula? ये formula दिमाग में ऐड कर देना, most IMP. So mu naught into n into I
sin pi by n into tan pi by n upon pi multiplied by LOS। कोई बोले वो तो ठीक है, LOS क्या है? लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड मोस्ट IMP। कोई बोले वो भी ठीक में है, मगर अपन लोग तो म्यू नॉट को जानते हैं। म्यू नॉट दैट मींस परमिएबिलिटी, I दैट मींस करंट। कोई बोले n क्या है? मोस्ट IMP, वेयर n represent number of sides, मोस्ट इंपोर्टेंट। यू कैन सी ये शॉर्टकट बहुत ही बेहतरीन, जो बहुत कम देखने को मिलेगा। दिस इज सुप्रीम फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड धूम इक्वेशन। The magnetic field at the center of, you can see that polygon, any type of polygon, for example square, so we have to consider n is equal to 4, for example hexagons, then you have to consider n is equal to 6। अपन लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, डोंट वरी। मोस्ट IMP, ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको जिसे कह सकते हैं कि इसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देता हूं ताकि पता चले। सपोज फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ given diagram, that means like you can see that triangle। चलो एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन based on this, shortcut। So this is, you can see that equilateral triangle is shown in this diagram, the length of side already 1 meter, then here your current already 10 ampere, current ऐसे flow है, देखो this is the direction of current, I already 10 ampere, so this is the current carrying, we can say the triangle। What is the magnetic field at the center of this triangle? So this is your target, so direct मैं shortcut apply करूँगा। To apply this shortcut, what is your n here? Particularly for this n here, n represent number of sides, so for triangle we have to consider 3, so set up the values। Mu naught 4 pi into 10 raised to minus 7, n that means 3, because number of sides you can see। Current I already 10 ampere, so current already 10 ampere, then sin pi by n, so pi by 3, then 10 pi by n, that means pi by 3 upon pi multiplied by length of side। What is the length of side here? 1, you can see। Now if you simplify and you will get answer, it is 18 into 10 raised to minus 6 Tesla। This is the answer of this point। इसको सोल्व करोगे तो ये आपने देखा। तो दोस्तों ये हमने जाने अनजाने में क्या कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन JEE 2019, यू कैन सी। तो ये मस्त शॉर्टकट, सीधे 4 मार्क्स, यू कैन सी दैट, यू कैन सी दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन JEE 2019। तो ये बहुत ही टिपिकल है, मगर एक ज फॉर्मूले से फटाक से हो जाएगा। सो मार्वेलस शॉर्टकट, डोंट फॉरगेट। एनी टाइम यू आर डीलिंग विद पॉलीगॉन and you would like to find magnetic field at the center, this is the ideal shortcut। mu naught n I sin pi by n into 10 pi by n upon pi into length of side। दो ही जगह पे पंच मारना है, n number of sides, LOS length of side, बाकी कुछ नहीं। इसकी और एप्लीकेशन देखेंगे मोस्ट IMP, so just check it। तो ये देखो सब मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट्स हमने डिस्कस किए। अब अपन लोग और एक कदम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए और थोड़े जिसे कह सकते शॉर्टकट कवर करें। तो सर्कुलर लूप और रिंग रिलेटेड हमने देखा, काफी जो डिस्कशन किया उसके रिलेटेड में अब आपको कुछ जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन देता हूं जो आपको ट्राई करने हैं। तो अपन लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नो डाउट में वो शॉर्टकट्स है वो मगर अलग पॉइंट में है, तो अपन लोग वो डिस्कशन बाद में करेंगे। तो सबसे पहला मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो बहुत ही IMP है और वो भी एक शॉर्टकट ही बनने वाला है, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट के तौर पे लेता हूँ। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ लॉन्ग वायर इज गिवन, दिस इज, यू कैन सी लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L। ओके, नाउ दिस वायर इज, यू कैन सी दैट बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ 1 टन। इसमें से मैंने बनाई ऐसी लूप, you can see long wire is bent in the form of circular loop of turn 1, so number of turns here 1, ये बना दिया। ओके, इसका रेडियस अपन लोग कंसीडर करते सपोज R1। तो अगर ये जो वायर जिसका लेंथ है उसमें से मैं ऐसा लूप बनाऊं 1 टन वाला,
तो इसका लेंथ कितना होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, सॉरी सर्कुलर लूप, ऑब्वियसली इट इज 2 पाई r1 एंड ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू l और नॉट, क्योंकि अगर इसको आप कैंची घर पे है कि नहीं, उसको इधर इधर कट कर दो और इसको वापस जैसे कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये बनेगा, मतलब ये जो पूरी लेंथ है वो ऑब्वियसली l होगा, सो 2 पाई r1 इज इक्वल टू l। चलो रेडी। अब ये लोग बोलते हैं सेम वायर, दिस इज द वायर सेम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर l, इसको वापस बेंड करते हैं एंड नाउ वंस अगेन वी फॉर्म, यू कैन सी दैट सर्कुलर लूप, ऐसा लूप बनाया, बट व्हाट इज द डिफरेंस, हियर नंबर ऑफ टर्न 1, हियर नंबर ऑफ टर्न्स सपोज स्मॉल n। तो ये वायर को बेंड करके एक ज टर्न वाली लूप बनाए, उसके बाद वही वायर को बेंड करके अगर n नंबर ऑफ टर्न्स वाली लूप बनाई जाए तो उसके जिसे कह सकते हैं रेडियस अपन लोग लेते हैं r2, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, अब इस दोनों में से सेम करंट पास करते हैं, यू कैन सी सेम करंट, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप for one turn, it is suppose B1, and what is the magnetic field at the center of loop number 2, it is B2। don't forget इधर डिफरेंस एक है कि इधर जिसे कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स एक है, जबकि इधर n नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इधर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे B1 प्रोड्यूस हो रहा है, इधर सेंटर पे B2, तो अब लोगों ने पूछा फाइंड रेशियो ऑफ B1 टू B2, दिस इज योर टारगेट, इधर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, तो ऑब्वियसली फ्रेंड इसके ऊपर से पहले तो अपन लोग जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये मोस्ट टाइम पे तो अपन लोग को पता है, ये म्यू नॉट करंट अपॉन 2 इनटू रेडियस, रेडियस r1 देखो, मगर इसके ऊपर से r1 अपन लोग सब्जेक्ट फॉर्म में लाए, व्हाट इज द r1, इट इज l अपॉन 2 पाई, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं, देखो एग्जैक्ट फॉर्मूला है म्यू नॉट n इनटू i अपॉन 2r1, बट व्हाट इज द n, 1, सो म्यू नॉट n की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है, i का i अपॉन 2 इनटू r1, r1 दैट मींस सिंपली l अपॉन 2 पाई, सो 2 कैंसिल और पाई गुलाटी मार के ऊपर, सो व्हाट इज योर b1, इट इज म्यू नॉट i इनटू पाई अपॉन l, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब b2 फाइंड करते हैं, b2 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n current I upon 2 into radius, मगर here number of turns you know that very well, not 1 but instead of n we have to consider small n, I upon 2 into r2। अब इधर देखो 2 into r2, तो इधर जैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया इधर कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, ये लेंथ है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स को वापस खोल दिया जाए और सीधा वायर बना दिया जाए तो अपन लोग लिख सकते हैं हियर l is equal to 2 pi r2, कि कोई डिफरेंस आएगा, जैसे इधर लिखा 2 पाई r1 इज इक्वल, तो ऐसा ही होगा कि कुछ आएगा डिफरेंस, यस कुछ डिफरेंस बनेगा, क्या इधर तो एक टर्न का था, इधर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो स्मॉल n, इधर स्मॉल n टाइम्स होगा ना, एक 2 पाई r2, दो 2 पाई r2, तो n नंबर ऑफ के लिए n 2 पाई r2 इज इक्वल, तो इसके ऊपर से अपन लोग इसे कह सकते हैं r2 को सब्जेक्ट फॉर्म में लाए, सो व्हाट इज द आंसर, इट इज l अपॉन 2 पाई n, जस्ट चेक इट। अब ये वैल्यू इधर रख देते हैं, सो इंस्टेड ऑफ r2 l अपॉन 2 पाई n, सॉल्व इधर दोस्तों 2 कैंसिल, ये पाई n गुलाटी मार के ऊपर हो जाए, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज म्यू नॉट n इनटू n स्क्वायर पाई इनटू i अपॉन 2 इनटू सॉरी 2 कैंसिल ओनली l, चलो ये आ गया। अब ये दोनों का रेशियो ले, सो इधर अपन लोग लिखते हैं b1 by b2 is equal to b1 mu naught I pi l, so mu naught I pi upon l अपॉन ये आएगा mu naught n square I pi upon l, सब कुछ कैंसल, ओनली 1 upon n square। तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ मोस्ट IMP, we can write b1 by b2 is equal to 1 upon n square, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, b2 is equal to n square b1, ये बन गया शॉर्टकट मोस्ट IMP। if given wire of length l is bent into, we can say that n number of turns, then what is the magnetic field at the center of the loop having n number of turns, it is always n square times of initial magnetic field। ये पूछेंगे बहुत ही IMP। फॉर एग्जांपल
अगर मेरे पास एक वायर है, उसको बेंड करके मैं एक सर्कुलर लूप बनाता हूँ और वो लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। अब यही वायर को मैं वापस जिसे कह सकते लूप बनाता हूँ या लूप में कन्वर्ट करता हूँ, और अब जो मैं लूप बनाता हूँ उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 2, सपोज मैं 4 बोलना चाहूँ तो 4, सपोज 4 नंबर ऑफ टर्न्स बनते हैं। तो ऐसी लूप जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 4 हो, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो B2, देखो ये B2, n यानी नंबर ऑफ टर्न्स, हम नंबर ऑफ टर्न्स 4, तो 4 स्क्वायर, एंड व्हाट इज द B1, वो हमने देखा था 2 टेस्ला, तो 16 2 32 टाइम्स, यू कैन सी 32 टेस्ला, इट इज सिंपली यू कैन सी दैट 16 टाइम्स। तो मोस्ट IMP, कभी भी याद रखो कोई वायर हो, उसको बेंड करके कोई लूप बनाए और उसका नंबर ऑफ टर्न 1 है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। अगर यही वायर को बेंड करके ऐसी लूप बनाए जिसके नंबर ऑफ टर्न स्मॉल n हो, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो पहले मैग्नेटिक फील्ड था B1 उससे n² टाइम्स ज्यादा होगा। मोस्ट IMP शॉर्टकट, तो ये शॉर्टकट बहुत ही काम में आने वाला है, वेरी 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 IMP। एंड जाने अनजाने में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। दिस इज नीट 2016, यू कैन सी, सुपर। तो ये नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, मगर आप देखो फॉर्मूले पावर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला धूम मचाएगा, और ये शॉर्टकट तो बिंदास माशाअल्लाह मोस्ट IMP। सो प्लीज check it, very IMP point we have discussed. Okay friends, so now we'll move in forward direction. तो एक आध और क्वेश्चन अब आगे बढ़ाते हैं। देखो अब अपन लोग धीरे धीरे क्वेश्चन है वो सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया जिससे दो काम हुए, एक तो शॉर्टकट मिला, प्लस जिसे कह सकते हैं कि नीट 2016 का क्वेश्चन अब सोल्व हो गया। अब नीट 2016 का क्वेश्चन सोल्व करने का रीजन शॉर्टकट, बाकी डायरेक्ट भी अब आप आंसर लिख सकते हो। तो अपन लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अपने एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं कि सोल्व करवाता हूं, जरा देखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज ऑलरेडी आस्किंग JEE 2004 यानी EEE 2004। क्वेश्चन बहुत IMP, पहले आपको ट्राई करनी है। The magnetic field due to current carrying a circular loop of radius 3 cm. This is current carrying circular loop of radius 3 cm, यानी capital R 3 cm. Ready? Okay. At a position on the axis at a distance of 4 cm. यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट P है। ओके, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज 54 माइक्रो टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इट इज 54 माइक्रो टेस्ला। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? दिस इज योर टारगेट। यानी कि आपको लूप की सेंटर से, लूप के सेंटर से x, यू नो दैट दिस इज x जितनी दूरी पे जो पॉइंट है वहां का मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो सेंटर पे कितना होगा? आप अपना ट्राई अप्लाई करो और वीडियो पॉज करो, शॉर्टकट दिया हुआ है आप जानते हो, अप्लाई इट। ओके, अगर आपने वीडियो शुरू किया तो देखो इसका शॉर्टकट मैंने अभी दिया, बी सेंटर टू बी एक्सियल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी सेंटर टू बी एक्सियल? It is 1 plus x square by r square power 3/2। तो अपन लोग तो अब सीधे अप्लाई करें, बी सेंटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन? इट इज 54 माइक्रो टेस्ला। 54 इज इक्वल टू 1 प्लस x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x ऑलरेडी 4, सो 4 का स्क्वायर होगा 16। r व्हाट इज द रेडियस? इट इज 3, सो उसका स्क्वायर होगा 9, और इसके ऊपर पावर आएगा 3/2। तो अपन लोग लिखे बी सेंटर अपॉन 54, तो इसका 9 प्लस 16 25/9 पावर 3/2। चलो तो पहले 3/2 को लिखने का फंडा बी ग्रुप वाले, पहले 1/2 और उसके ऊपर भी पावर 3 कर देते हैं। तो 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, तो फाइनल आंसर होगा बी सेंटर
अपॉन 54 5/3 उसका आएगा क्यूब। तो अब अपन लोग इसको सोल्व करें। सो बी सेंटर अपॉन 54 5 का क्यूब 125 3 का क्यूब 27 27 2 जा और 2 into 125. So what is the magnetic field at the center? It is already 250 microtesla. So this question already asked in 2004 and you know that this is the marvelous shortcut. See the shortcut apply करना है, बहुत ही famous shortcut है, analyze it, very important. Okay friends, so now we'll think about one more. तो अब अपन लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट धूम मचाने वाले हैं, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। अब अपन लोग जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेगमेंट वाइज देखा जाए तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बनेगा। सो दिस इज योर ट्रिपल 2004, यू कैन सी। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ बी रेडी फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। It is very important. Why it is very important? Because it is already, we can say that, asked in very important paper. So there are two, we can say that, identical wires. Now this is wire A and this one is the wire B. चलो दो वायर्स दिए। अब पहले वायर को दोनों का लेंथ सेम है, डोंट वरी, आइडेंटिकल मतलब लेंथ सेम। अब फर्स्ट वायर ए को बेंड कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। तो हम तो जानते हैं अगर वायर को बेंड करके लूप बनाया जाए तो हमारे पास तो ये फंडा है, एल इज इक्वल टू सिंपली 2πr, इसको खोलो तो लेंथ तक बनेगा, ये फॉर्मूला। ओके, अब दूसरा जो वायर है बी, जिसका भी लेंथ एल है, उसको बेंड करके बनाया गया स्क्वायर, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड डी। अब दोनों में से सेम करंट पास करते हैं, आई, यू कैन सी दैट। अब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? इट इज B1 एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर? इट इज B2। तो आपको फाइंड करना है सिंपली द रेशियो, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B1/B2। चलो ये फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप? तो B1, याद करो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। सो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, तो करंट अपॉन 2 इंटू रेडियस, रेडियस है r। तो अपन लोग r को जिसे कह सकते हैं कि इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, देखो म्यू नॉट i अपॉन 2 r। तो r को इसमें से सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ तो क्या होगा, l अपॉन 2π। सो आई कैन पुट हियर l अपॉन 2π, 2 कैंसिल, पाई गुलाटी मार के ऊपर, सो म्यू नॉट i पाई अपॉन l। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। कोई बोले वो तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें भी समझ में आ गया, आपको कैसे पता चला कि r को लेंथ में कन्वर्ट करना है? चलो रुक जाते थोड़ी देर, अपन लोग इतना समझे। अब स्क्वायर है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर? तो याद करो शॉर्टकट B2, यहाँ पे सेंटर पे B2 का मैंने शॉर्टकट दिया था, म्यू नॉट ni sin π/n tan π/n अपॉन पाई इंटू LOS, लेंथ ऑफ साइड। जबरदस्त शॉर्टकट। व्हाट डू यू मीन बाय n? n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइड्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स? 4। सो n इज इक्वल टू 4। सो B2 म्यू नॉट n हियर 4, करंट I sin π/4 tan π/4, ये n की वैल्यू रखना है इसलिए π/4 अपॉन पाई इंटू लेंथ ऑफ साइड है d, यू कैन सी। तो चलो जरा एक कदम आगे बढ़ते, इसको सोल्व करते। वेरी आईएमपी, म्यू नॉट की जगह मैं लिख देता हूँ 4 म्यू नॉट, करंट I sin π/4, कोई बोले थोड़ी देर बाद बताता हूँ, 1 अपॉन √2 tan π/4 1 पाई इंटू d। तो d है, देखो d, इधर d का d पहले रख देता हूँ। तो अब देखो 4 की जगह अपन लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 की जगह लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 एक से साथ कैंसिल हो जाए तो बचा क्या, 2√2। सो फाइनल आंसर होगा B2 इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई d, यू कैन सी। अब दोस्तों ये दोनों के बीच में नाता करना हो, देखो इतना होता है, इधर r है रेडियस और इधर लेंथ ऑफ साइड है,
वो दोनों का कॉमन मेंबर लेंथ, इसलिए हमने इधर आर को लेंथ में कन्वर्ट किया। तो इधर भी अगर ये जो वायर है उसको बेंड करके अगर ऐसा हम बनाए क्या स्क्वायर, तो ये चारों चार को जिसे कह सकते खोल दो वापस, 1 2 3 4 तो वापस लेंथ बन जाए। तो इधर एल क्या बनेगा, एल इज इक्वल टू सिंपली यू कैन सी 4d, d plus d plus d plus d, that means 4d is equal to l. So d is equal to l by 4, you can see. So we can set up here, you can see d is equal to l by 4. So 2 root 2 mu naught I pi upon l by 4. तो ये l by 4 है, उसको अपन लोग ऊपर ले जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 root 2 हो जाएगा। सो b2 is equal to 8 root 2 mu naught I upon pi l. चलो अब इसका रेशियो लेने का है। थिंक अबाउट, वी कैन से द रेशियो ऑफ दिस टू वेरी आईएमपी। तो चलो अभी ये रेशियो अपन लोग इधर ले लेते, ये हटा देते इधर। सो सिंपली b1 to b2, so b1 by b2, b1 already mu naught I pi upon l, and here 8 root 2 mu naught I upon pi into l, l cancel, I cancel, mu naught cancel, सॉरी पाई हो गया इधर आई, तो इधर से पाई उठ के ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 रूट 2, बाकी कुछ बचता नहीं है देखो। एंड दिस इज योर, वी कैन से दैट आंसर परफेक्ट। तो ये मस्त क्वेश्चन था फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट मार्वेलस, बट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टकट इट बिकम्स वेरी इजी, otherwise it becomes little bit difficult. And why this is valuable, because it is already asking JEE 2016 2016 और Sabnam, you can see that most IMP. So analyze supreme question we have discussed. तो ये बेहतरीन क्वेश्चन अपन लोग देखो सोल्व कर रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि कुछ और मैं आपको क्वेश्चन जिसे कह सकते देता हूँ ताकि आपके फंडे बने। सो JEE 2016 डिस्कस किया। देखो ये शॉर्टकट सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसका यूज करने का है। नाउ यू थिंक अबाउट वन मोर। चलो सभी बंदे अभी इधर देखे। ओके, नाउ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ टू लूप्स आर गिवन। मैं एक को जिसे कह सकते हैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। चलो यू कैन सी this type of two loops, concentric loops, I can say center common. This is you can see that axis. So दोनों loops ऐसे रखिए आपके सामने। देखो ये पहली, फिर दूसरा ऐसे। You can see two loops. There is observer. Observer already here. This is suppose west direction, east, east west, north south, इस तरह का पॉइंट। मैं इधर खड़ा हूँ और मैं ऐसे दोनों लूप, पहली लूप ऐसे फिर दूसरी लूप ऐसे। You can see that current passing through first loop, you can see that suppose first loop or inner loop it is y loop, or outer loop it is you can see that x loop. outer यानी black color को अपन लोग कह देते x loop and red color y loop. current passing through you can see that y loop. this is the direction of current passing through this y loop. यानी अपन लोग राइट हैंड थंब रूल लेके डायरेक्शन पता चला। करंट जिसे कह सकते हैं कि ऐसे जा रहा है, ऐसे यू कैन सी ऐसे। दिस इज यू कैन सी दैट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं जरा इधर चेंज कर देता हूँ ताकि वरना लोगों को ऐसा बाहर आता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउटसाइड ऐसे। नाउ यू कैन सी दैट ऐसे करंट गोइंग इनसाइड वाई लूप में से। तो करंट ऐसे जाता हो तो थंब कैसे आ रहा है, देखो जस्ट यू कैन सी दैट थंब रिप्रेजेंटिंग हियर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to this y loop. It is denoted by by. So whatever the magnetic field produced at the center of this y loop, it is by, and this is the direction of by. Radius of this by loop it is ry, and radius of you can see that black color loop यानी x loop it is suppose rx. यानी black color simple represent करेगा x loop
रेड कलर रिप्रेजेंटिंग वाई लूप। समझ में आ रही है? वापस मैं इधर खड़ा हूं, मेरे सामने ऐसी दो लूप है, फर्स्ट है वाई, उसके ऊपर है एक्स। वाई में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण वाई के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी वाई। अब एक्स में से करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे देखो उल्टा, सॉरी, द करंट पासिंग थ्रू वी कैन से दैट एक्स लूप इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई करंट। वाई जो करंट है इट इज आई वाई, सॉरी, current passing through y loop it is iy and current passing through x loop it is ix। समझ में आ रही है? मेरा सिंपल स्टोरी है, बहुत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। y लूप में से iy करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण by मैग्नेटिक फील्ड, x लूप में से ix करंट फ्लो हो रहा है। एक का डिफरेंस है, व्हाटएवर द करंट पासिंग थ्रू x लूप इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ y लूप। तो y लूप में करंट अंदर जा रहा है तो x लूप में से करंट बाहर आ रहा है ऐसे। यानी अगर आप सामने से देखो, ये जैसे कह सकते हैं कि ये अपना जिसे कह सकते हैं कि वाई लूप है और एक्स, तो वाई लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स। अगर मैं सामने से देखूं या आपके सामने से देखो तो ये करंट जिसे कह सकते हैं कि बाहर आ रहा है, ये करंट जा रहा है अंदर। सो वाई लूप में करंट अंदर जा रहा था तो अपन लोग ने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया। अब एक्स लूप में से करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यू कैन सी दैट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर because of this x current carrying loop. This is Bex. So what is the resultant magnetic field at this point O? So here the resultant magnetic field at point O or at center, this is your target। पूरा मैंने न्यूमेरिकल का बेस बनाया, दो लूप से, x लूप y लूप, दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है। x लूप की रेडियस rx है, y लूप की रेडियस ry है। y लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड by जो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो x लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो y से ऑपोजिट है। सो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू x लूप इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ by यानी bx से ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि डेटा वाइज तो अपने पास सब कुछ है, मगर अब मैं थोड़ा बेस बनाता हूँ, फिर आपको न्यूमेरिकल है वो आपके हवाले छोड़ता हूँ। यानी कि बेस है अपने पास ऑलरेडी है ही, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। चलो, तो सबसे पहले डेटा हमने डिस्कस कर लिया, अब अपना टारगेट है पहले Bx। सो विल स्टार्ट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ x रिंग या x लूप। So what is the formula of magnetic field at the center? It is Bx. Here on Bx. So what's the formula? Mu naught nx ix upon 2 into rx। याद करो, mu ni upon 2 into radius, n number of turns है, don't worry। अब आपको सभी वैल्यूज दी है, नंबर ऑफ टर्न्स A to Z। So what is the magnetic field at the center? It is 4 pi into 10 raised to minus 4 टेस्ला, ऐसा आंसर आएगा। सभी वैल्यूज रखोगे इसके, डोंट वरी। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वाई रिंग, दैट मींस इट इज by। सो म्यू नॉट ny iy अपॉन 2 into रेडियस। फॉर्मूले पावर चकाचक चाहिए, यू नो दैट, ऑल वैल्यूज विथ यू, सभी वैल्यूज दिए, डोंट वरी। by का आंसर आएगा, it is simply you can see that 9 pi 10 raised to minus 4 टेस्ला। So what is the resultant magnetic field at point O? ये दोनों सोल्व करने के बाद resultant magnetic field at point O it is B यहाँ पे। So I can write B is equal to by minus bx, क्योंकि opposite direction और by का पलड़ा भारी है, so by minus bx। So it is 9 pi into 10 raised to minus 4 bx 4 pi into 10 raised to minus 4। So resultant magnetic field 5 pi into 10 raised to minus 4 Tesla। This is your answer, you can see। And what is the direction of it? It is already, I can write in the direction of west। You can, it is already in the direction of west। कोई बोले by नहीं, resultant, क्योंकि जिस डायरेक्शन में by होगा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, क्योंकि जिसका पलड़ा भारी उसी की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, मोस्ट IMP। तो थोड़ी देर पहले हमने नीट 2016 देखा, उसके बाद हमने JEE 2016 देखा, यानी कि नीट 2016, JEE 2016, तो ये 16 और 17,
तो ये भी क्या है, दिस इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 4.16, यानी ये भी 16 नंबर का न्यूमेरिकल मोस्ट आईएमपी you can see. So it is, you can see that 4.14 a little bit we can say that change, क्योंकि ऐसा ही 16 नंबर भी ऐसा ही, डोंट वरी, वो कहाँ है तो बाद में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज 4.14, सो वेरी आईएमपी, डोंट वरी. 4.16 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो नेट जेडब्ल्यू जैसा ही है. तो ये हमने 14 नंबर का आंसर भी कवर किया, मोस्ट आईएमपी एनसीईआरटी. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जस्ट एनालाइज एंड देन विल थिंक अबाउट नेक्स्ट.